سب سے پہلے بات کریں گے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی۔ فیصل آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پہلا روز پولیس اور انتظامیہ کے عدم تعاون کے باعث رات گئے مارکیٹ سیل نہ ہو سکیں۔ صبح سویرے کئی دکانیں کھل گئیں، تاہم انتظامیہ نے مارکیٹیں بند کرا دی۔ کمشنر آر پی او، ڈی سی اور اے سی نے شہر کا دورہ کیا۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں یہ ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی چند جھلکیاں، جہاں پولیس اور انتظامیہ کے مبین آپسی تعاون نہ ہونے کے باعث بازاروں میں کاروبار جاری ہے۔ انتظامیہ نے 8 بازاروں میں بیشتر دکانیں بند کروا دی، مگر گول بازار میں چوری چھپے کاروبار جاری ہے۔ گھنٹہ گھر اطراف کے بیشتر بازاروں میں معمول کے مطابق رش ہے۔ 8 بازاروں میں شہری ٹولیوں اور گروپوں میں موجود ہیں۔ دکاندار گاہک آنے پر شٹر اٹھا کر فروخت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کمشنر آر پی او، ڈی سی اور اے سی نے شہر کا دورہ کیا۔ کمشنر عشرت علی نے بتایا کہ مانیٹرنگ ٹیمیں بنا کر کارروائی کا آغاز کریں گے۔ ٹیم بن گئی ہے مانیٹرنگ والی، تو انشاءاللہ وہ ان کو چارج کریں گے۔ ان کو اس طرح کی چیزیں یہ سارا واسطہ کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اور یہ جو مڈل مین ہے یہ اس طرح کی گیم انشاءاللہ ہم اس کو کراچی یا دوسرے شہروں جیسا حال نہیں ہونے دیں گے۔ انتظامیہ کے مطابق صرف کچہری بازار میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، تاہم تاجروں کی سہولت کے لیے نرمی برتی جا رہی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز پولیس نے ضلعی انتظامیہ کے تعاون سے مارکیٹیں بند کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ غلام محمد آباد اور رضا آباد میں تمام بازار بند کرا دیے گئے۔ فیصل آباد میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آغاز ہوتے ہی ضلعی انتظامیہ اور پولیس حرکت میں آ گئی۔ گھنٹہ گھر چوک کے 8 بازار بند کرا دیے گئے۔ پولیس کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلنے کے اعلانات بھی کرائے گئے ہیں۔ شہر کے مین بازار جس میں رضا آباد اور غلام محمد آباد شامل ہیں، ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے پر بند کرا دیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ شہری قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، ہم تو ان کی سپورٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جو ان کی طرف سے احکامات ہیں، دفعہ 144 لگ گئی ہے، پبلک کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اپنے اور اپنے بچوں کی خاطر یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو لگا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو بھی بچائیں اس بیماری سے اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کچھ بازاروں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ فیکٹری ایریا کے علاقہ ٹاٹا بازار میں دکانداروں کا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود کام جاری ہے۔ دکانداروں کی جانب سے شٹر گرا کر کام کیا جانے لگا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ 14 روز کے لیے کیا گیا ہے تاکہ کورونا پر قابو پایا جا سکے، مگر کچھ علاقوں میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی بھی جاری ہے۔ کیمرامین محمد رحمان کے ساتھ فرزانہ صدیق، سٹی 41، فیصل آباد۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک اور خبر، ضلع فیصل آباد انتظامیہ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ فیکٹری ایریا کے علاقے ٹاٹا بازار میں دکانداروں کا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باوجود کام جاری۔ دکانداروں کی جانب سے شٹر گرا کر کام کیا جانے لگا۔ کاروبار کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ فیصل آباد کے کچھ علاقوں میں کورونا کی روک تھام کے لیے حکومتی ہدایت کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن فیکٹری ایریا کے علاقہ ٹاٹا بازار میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ تاجروں کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ تاجروں کی جانب سے شٹر گرا کر کاروبار کا سلسلہ جاری رہا۔ کاروبار کی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ ضلعی انتظامیہ کی غفلت کے باعث پولیس تک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پیغام بروقت نہ پہنچنے کے فائدے بھی تاجروں نے بھرپور اٹھائے۔ گھنٹہ گھر کے اطراف میں کئی مارکیٹیں کھلی رہیں۔ پولیس موقع پر موجود تو ہے مگر کنفیوژن کا شکار ہے۔ پولیس کی جانب سے اپنے طور پر تمام دکانیں بند کرانے کے اعلانات کیے گئے، لیکن کچہری بازار سمیت دیگر بازاروں کے اندرونی گلیوں میں تاجروں کی جانب سے شٹر گرا کر کام کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن پر تاجروں اور شہریوں کی جانب سے اگر عمل نہ کیا گیا تو کورونا وائرس کے خطرناک نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فرزانہ صدیق کے ساتھ رانا ظاہر نذیر، فیصل آباد۔ کھرڑیاں والا میں میونسپل کمیٹی اور پولیس بازار بند کرانے میں ناکام ہو گئی۔ سٹی 41 کے رپورٹر نے فوٹیج بنائی تو پولیس اہلکار ہاتھا پائی پر آ گیا۔ عمر پولیس اہلکار نے موبائل فون چھین کر توڑ دیا۔ جی بالکل، میونسپل کمیٹی کھرڑیاں والا کمشنر اور ڈی سی کے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی ہے، اور سٹی 41 کے نمائندے علی رضا نے جب یہ تمام فوٹیجز بنائی اور ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے اور اموات بڑھنے کا obviously خطرہ ہے، تو اس کو تمام تر معاملات کو بے نقاب کرنے کے لیے جب علی رضا نے فوٹیج بنائی تو پولیس کی جانب سے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، ہاتھا پائی کی گئی، بدتمیزی کی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے، قریب آتا ہے، اس سے بات بھی نہیں کرتا، اس کا کیمرہ چھین لیتا ہے، موبائل فون توڑ دیتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پولیس اہلکار نے بدتمیزی کی سٹی 41 کے نمائندے کے ساتھ۔ فیصل آباد میں گھنٹہ گھر سے ملحقہ تمام بازار بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ تاجر کہتے ہیں کہ داخلی اور خارجی راستے بند کر کے تجاوزات ہٹا دیے جائیں
तो रश खत्म हो जाएगा। मगर ताजरों के कारोबार बंद करना मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। ये रिपोर्ट देखें। फैसलाबाद में बुआना बाजार, रेल बाजार, गोल बाजार, रीगल रोड, कारखाना बाजार समेत दीगर बाजारों के दाखिली व खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान हुआ तो ताजर सीखपा हो गए। जब शाम 7 बजे तक 8 बजे तक हर किस्म के कारोबार बंद हो जाएं, लॉकडाउन ना होने की सूरत में, तो उसके बाद हमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो है वो व्हीकल अंदर आ जाए, उसका असर भी नहीं पड़ेगा और वो पूरी रात अपनी लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। कारोबार 30 जून तक बंद रहेंगे। ताजर रहनुमा असलम बली का कहना है कि 8 बाजार बंद करने का ये हुकूमती फैसला एकतरफा है। ये बात बिल्कुल ऐन मौके के मुताबिक थी, लेकिन इन्होंने आज तक हमारे साथ जितने भी मुज़ाकरात किए हैं और जो हमारी तजावीज़ ली हैं उस पर एक पर भी अमल दरामद नहीं किया। अगर उनके ऊपर अमल दरामद करें तो हम समझते हैं कि इनको बिल्कुल लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताजरों ने कहा कि हुकूमत कोई फैसला करने से पहले एतमाद में ले तो माशी नुकसानात से भी बचा जा सकता है। हुकूमत ने तमाम बाजारों को बंद करने का फैसला किया है, जो ताजरों पर पहाड़ बनकर टूटा है। ताजरों ने इस फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शहराज भट्ट, फैसला। झंग के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। ज़िला इंतजामिया ने वजारत दाखिला पंजाब को सिफारिशात के लिए खत भिजवा दिया। खत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, जबकि शहर में 7 गलियों को सील कर दिया गया है। में कोरोना के वार बढ़ने लगे। तेजी से फैलती वबा को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने 7 मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ महकमे दाखिला पंजाब को भिजवाई है, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन से एक रोज़ कबल इलाका मकीनों का मतला किया जाएगा, जबकि महकमे सेहत, रेवन्यू, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पुलिस अमले की खिदमात की 7 मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ दी गई है। वहाँ रिहायशी अफराद की तादाद 5 लाख के करीब है। इनमें मोहल्ला कपाइयाँ, पिपलावाला, इकबाल नगर, रसूलपुरा, अकबर रोड, बस्ती कुलवाली और अहमदपुर सियाल की कश्मीर कॉलोनी के फैलाव की रोकथाम के लिए इंतजामिया ने झंग की 7 गलियाँ सील कर दी हैं। सील की गई गलियों में 37 घर वाक़या हैं। घरों में मुकीम 195 अफराद को आइसोलेट किया गया है। घर मोहल्ला मर्जीपुरा, इकबाल नगर, गोजरा रोड पर वाक़या हैं। जिन मकामात को सील किया गया है वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अमले की भी खसूसी ड्यूटी लगाई गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुलाकात। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को नैब की 2019 की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को नैब की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साल 2019 में नैब ने 747 इंक्वायरियां मुकम्मल की, 141.54 बिलियन रुपए रिकवर किए गए, जबकि मुख्तलिफ केसेस की 269 इंक्वायरीज की। उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन की कामयाबी का तनासब 68.8% रहा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि नैब एक खुद मुख्तार इदारा है और मुस्तकबिल में इसे मजीद मजबूत करने की जरूरत है ताकि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा किया जा सके। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 108 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4000 से तजावज कर गई। 8 डॉक्टर्स भी वायरस का शिकार हो गए हैं, जबकि मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 299 हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 108 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4099 हो गई है। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी, अस्पतालों में जेर इलाज मरीज और अमला शामिल है। ताहम 24 घंटों के दौरान 8 डॉक्टर्स भी वायरस से मुतासर हुए हैं। जिला भर में मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 299 हो गई है। इनमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स शामिल हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टैक्सी में मजीद 19 नए कोरोना के केसेस सामने आ गए। तादाद 334 तक पहुंच गई। सीईओ हेल्थ टोबा डॉक्टर मुमताज सियाल का कहना है कि घरों में आइसोलेट होने वाले आम शहरियों में तमाम डॉक्टर्स भी सेहतयाब हो रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो गया है। मुतासर अफराद की तादाद 334 तक पहुंच गई है।
ओवरटेक्सिंग में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो गया है और मुतासरा अफराद की तादाद 334 तक पहुंच गई है। मजीद 206 सैंपल्स की रिपोर्ट मसूल होने के बाद 19 नए केसेस सामने आ गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में टोबा जिला के 15 मरीज जेर इलाज हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर मुमताज सियाल का कहना था कि इस वक्त फील्ड अस्पताल में 6, गोजरा, टोबा और पीर महल के अस्पतालों में एक मरीज जेर इलाज हैं, जबकि जिला भर में इस वक्त 216 मरीज घरों में आइसोलेट हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि 3 केसेस हमारे पॉजिटिव केसेस ज़िला के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। एक DHQ टोबा टेक्सिंग में, एक DHQ हॉस्पिटल गोजरा में, एक RIC पीर महल में। तहसील हेडक्वार्टर कमालिया में कोई पेशेंट एडमिट नहीं है और 6 पेशेंट वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो हमारा मेडिकल कॉलेज है जो फील्ड हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से सब स्टेबल हैं। डॉक्टर मुमताज सियाल का मजीद कहना था कि घरों में आइसोलेट आम शहरियों समेत तमाम डॉक्टर्स और दीगर अफसरान सेहतयाब हो रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स की हालत खतरे से बाहर है। शहरी अफवाहों पर ध्यान ना दें और मौजूदा हालात में एहतियात बरतें और SOPs पर अमल करें। जंग से खबर शामिल करेंगे। MPA राना शहबाज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। राना शहबाज ने खुद को अपने घर में आइसोलेट किया है। लाहौर में उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। राना शहबाज का ताल्लुक तहसील अहमदपुर सयाल से है। जी हां, झंग MPA राना शहबाज का कोरोना रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। झंग राना शहबाज ने खुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया। राना शहबाज का ताल्लुक तहसील अहमदपुर सयाल में है। कमालिया में भी कोरोना के वार जारी। वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 30 तक पहुंच गई। कोरोना के मुश्तबा मरीजों की तादाद 50 हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा सैंपल्स टेस्ट के लिए भी भिजवा दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर अपील की जा रही है। कोरोना वायरस के महकमा रेलवे अफसरान और मुलाजमीन पर भी वार जारी हैं। महकमा रेलवे में अब तक 86 अफसरान और मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला हुए, जिनमें से 5 रेलवे अफसरान जाँ बहक हो चुके हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर रेलवे की जानिब से कोरोना वायरस का शिकार अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्त सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड को अरसाल। आपको आगाह कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के महकमा रेलवे अफसरान और मुलाजमीन पर वार जारी। महकमा रेलवे में अब तक 86 अफसरान और मुलाजमीन कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल मरहबा नेमत ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। मरहबा नेमत जल्द ही ओहदे का चार्ज दोबारा संभालेंगी। ये रिपोर्ट देखें। आपको बता रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल मरहबा नेमत ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है और तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। मरहबा नेमत जल्द ही ओहदे का चार्ज दोबारा संभालेंगी। आपको आगाह कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल मरहबा नेमत ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। मरहबा नेमत जल्द ही ओहदे का चार्ज दोबारा संभाल लेंगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से जनरल हस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार दे दिया गया है, जबकि अलाइड DHQ और जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में तैनात सर्जन और ऑर्थोपेडिक जनरल हस्पताल समनाबाद में मरीजों का ऑपरेशन करेंगे। रिपोर्ट देखिए अज़ादार हुसैन की। हुकूमत की जानिब से जनरल हस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार दिया गया है। ऐसे में जनरल हस्पताल समनाबाद में मरीजों को ऑपरेशन की सहूलत फ्राहम की जाएगी। अलाइड DHQ और जनरल हस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में तैनात सर्जन जनरल हस्पताल समनाबाद में ड्यूटी करेंगे। इस दौरान जनरल हस्पताल में मरीजों को सर्जरी और आर्थोपेडिक ऑपरेशन की सहूलत फ्राहम हो सकेगी। टीचिंग अस्पतालों के सर्जन रोजाना जनरल हस्पताल में OPD और ऑपरेशन करेंगे। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DHQ अस्पताल फैसलाबाद ने शोबा अमराज़े कल्ब के 40 बेड्स को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करते हुए कोरोना वायरस के लिए मुख्तस कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। DHQ अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस के मरीजों के बेड्स की तादाद में इजाफा कर दिया है। DHQ अस्पताल के शोबा अमराज़े कल्ब का एक हिस्सा आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। अमराज़े कल्ब के 40 बेड्स कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। MS डॉक्टर हबीब उटर का कहना है कि DHQ अस्पताल के दौरान वार्ड आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिए गए हैं। इससे कबल इकबाल वार्ड को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया गया है। तहम कोरोना में मुब्तला मरीज को इलाज की सहूलियात फ्राहम कर रहे हैं। MS का कहना है कि शोबा अमराज़े कल्ब में एमरजेंसी और एंजियोग्राफी समेत दीगर सहूलियात की फ्राहमी का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। महकमे फेस्को अफसरान की सुस्ती, रात 11 बजे खराब होने वाला ट्रांसफार्मर ठीक न किया जा सका।
मेन बाजार निशाताबाद की बिजली कई घंटे बंद रही। इलाका मकीनों में शदीद गम और गुस्सा है। एहतजाजन मेन शेखुपुरा रोड ब्लॉक करके फेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फेस्को के सार्फिन तक बिजली की बिला तौतुल फराहमी के दावे महज दावे साबित होने लगे। निशाताबाद ट्रांसफार्मर की खराबी 18 घंटे गुजरने के बाद भी फेस्को ऑपरेशन टीमें दूर न कर सकी। मकीनों को घंटों शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। अहले इलाका ने मेन शेखुपुरा रोड बंद करके एहतजाज किया। मकीनों के एहतजाज के बायस मेन शेखुपुरा रोड पर घंटों ट्रैफिक बंद रही, मगर फेस्को हुकाम ने सार्फिन के मसाइल को नजरअंदाज किया। इलाका मकीनों का कहना था कि 12 मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया, मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं। रात 2 बजे से ट्रांसफार्मर जल गया है। हम सुबह से 5 मरतबा 20-20 आदमी इकट्ठे होकर वापडा के दफ्तर गए हैं। उनका कोई जाती प्रॉब्लम है, वो स्ट्राइक पे हैं, हमारा काम नहीं कर रहे। हमारे घरों में पानी भी खत्म हो गया है, बिजली भी नहीं आ रही। रात 12 बजे से बिजली बंद है और सुबह से हम इनके लाइन मैन से लेकर एक्सीएन तक जो है हम इन्हें रिक्वेस्ट कर चुके हैं, और लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। इनका जो ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। फेस्को की ऑपरेशन स्टाफ की जानिब से 18 घंटे गुजरने के बावजूद ट्रांसफार्मर की खराबी को दूर न करना कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मौजम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। एमडी वासा जब्बार अनवर की कोशिशों से 2 वाटर प्लांट्स की बिजली बहाल कर दी गई। जेबीसी और वाटर बॉटलिंग प्लांट को बिजली मिल गई। वासा की जानिब से 30 करोड़ रुपए के बिलों की अदम अदायगी, 3 कनेक्शन ताहाल बहाल नहीं हो सके हैं। एमडी वासा जब्बार अनवर की कोशिशों से 2 वाटर प्लांट्स को बिजली बहाल कर दी गई है। जेबीसी और वाटर प्लांट बॉटलिंग को भी बिजली मिल गई है। वासा की जानिब से 30 करोड़ रुपए के बिलों की अदम अदायगी, 3 कनेक्शन ताहाल बहाल ना हो सके। वासा से ही एक और खबर। वासा को महाना करोड़ों रुपए खसारे का सामना, बेहतर मंसूबाबंदी से वासा को मुआशी बहरान से निकालेंगे। मीडिया शहरियों को बिलों की अदायगी का पैगाम आम करे। एमडी वासा ने मुकामी सहाफियों से गुफ्तगू की। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा जब्बार अनवर चौधरी ने बताया कि वासा फैसलाबाद को हर माह 27 करोड़ की खती रकम खर्च करना पड़ती है। महाना औसतन फी घर पानी की मद में 958 रुपये और सीवरेज की मद में 879 रुपये खर्च किए जाते हैं। बदले में वासा अपने सार्फिन से इंतहाई मामूली बिल वसूल करता है। वासा बिजली का बिल 9.5 करोड़ रुपये, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहें 9 करोड़ रुपये अदा करता है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 2.25 करोड़ रुपये, जबकि डीजल और पेट्रोल के बिल 85 लाख रुपये हैं। फ्रांस के ताउन से शहर के मशरकी हिस्से को पानी फराहम करने वाली लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर इशरत अली, डीजी मोहम्मद सुहेल ख्वाजा और एमडी वासा जब्बार अनवर ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। यह वासा का टर्मिनल रिजर्वायर चनौट से पंपिंग के जरिए पानी यहाँ लाकर पूरे शहर में फ्राहम किया जाता है। टर्मिनल रिजर्वायर से अब्दुल्लापुर, पीपल्स कॉलोनी, सुसान रोड, डुडीवाला, अल नजफ कॉलोनी और कोहेनूर टाउन के इलाकों को पानी देने वाली 1000 मिलीमीटर डाया की लाइन का इफ्तिताह किया गया। डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने बताया कि टर्मिनल रिजर्वायर के पंपिंग मशीनरी तब्दील हो रही है। जापानी टोरिश्मा कंपनी पंप्स तब्दील कर रही है। कमिश्नर ने वासा को सराहा और शहरियों को बिल अदा करने की तलकीन भी की। लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार रहना पड़ेगा कि उनको इसका बिल और देना पड़ेगा। बाकी शहरों में जाके देखें, अगर आप कंटेनर लेके आते हैं तो एक कंटेनर का आपको 400 से 500 रुपये देना पड़ते हैं। इस्लामाबाद में भी कंटेनर सर्विस चलती है, कराची में भी, बाकी जगहों। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आपका ये अपना बड़ा अच्छा अदारा है, इसको अच्छे तरीके से चलने दें। इस दौरान डीएमडी अदनान निसार, डायरेक्टर शोएब रशीद, डायरेक्टर साकिब रजा, डिप्टी डायरेक्टर्स व दीगर भी हमरा थे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पंजाब का खरबों रुपए का बजट पेश, मगर पीएचए फैसलाबाद को एक आने का तरक्याती बजट भी ना मिल सका। सरकार ने फैसलाबादियों को नजरअंदाज कर दिया। हुकूमत पंजाब ने 22 खरब रुपए का बजट बनाया।
पेश किए गए बजट के मुताबिक पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद को एक आने का तरक्याती बजट न मिल सका। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबादियों को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। PHA को मुसलसल तीसरे बजट में भी सालाना तरक्याती मंसूबों से महरूम रखा गया। बजट कॉपी के मुताबिक 2018 में खरीदी गई मशीनरी की अदायगी के लिए 51 लाख रुपए बजट में रखे गए हैं। ताहम DG PHA आसमा एजाज चीमा कहती हैं, ज़ाती वसाइल में इजाफे के लिए कोशिश करेंगे। हमारी HR है वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको ना सिर्फ हैंडल करने की कोशिश की जाएगी बल्कि कोशिश होगी कि हुकाम बाला तक उनकी आवाज़ को ज़रूर पहुंचाया जा सके और जिस हद तक हम उनके मसाइल को हल कर सकते हैं उसको ज़रूर उसमें एक अपनी तरफ से भरपूर काविश बरोए कार लाई जाए। मौजूदा सूरत हाल में फैसलाबाद को उजड़े हुए पार्क्स की बहाली के लिए 1 साल मजीद इंतजार करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिन्यूट के शहरी महरूमियों का शिकार। पंजाब हुकूमत के रवा माली साल के बजट में शहरी हलकों को सियासी बुनियादों पर नजरअंदाज कर दिया। तरक्याती कामों के लिए सिर्फ तहरीक इंसाफ के फतेयाब देहाती हलकों का इंतखाब हो सका। जिला चिन्यूट के शहरी हलका NA 100 और PP 94 से मुस्लिम लीग नून ने फतह हासिल की, जबकि लालियां और भवाना पर मुहित NA 99, PP 93 और PP 96 से तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। शहर के बासियों का नून लीग को वोट देना महंगा पड़ गया। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में तरक्याती कामों की एक स्कीम भी शहरी हलके में फंड्स मुख्तस करने की तजवीज न थी। शहरी अहम शहराहों की खस्ताहाली, सीवरेज के मसाइल, पार्क्स और साफ पानी से महरूम हैं, जबकि तमाम तरक्याती काम लालियां और भवाना में कराए जाएंगे। रवा माली साल के बजट में भवाना में सीवरेज के निजाम को बेहतर करने के लिए 4 करोड़, लालिया के इलाके बुर्ज बबल में PCC के लिए 10,39,000, टाउन कमेटी लालिया में 4,48,000, मोहम्मद वाला में 10,89,000 और UC 25 ऑफिस की बहाली के लिए 11,86,000 फंड्स मुख्तस करने की तजवीज ज़ेर गौर है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हतमी फैसले के बाद फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा फसीउल्लाह, सिटी 41 चिन्यूट। टोबा टैक्सिंग में सेहत के हवाले से आइंदा माली साल के बजट में कोई नया मंसूबा शुरू करने के लिए फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। DHQ को 500 बिस्तर का अस्पताल बनाने समेत ट्रॉमा सेंटर की तामीर के लिए बुलंदो बांग दावों समेत CM हाउस से जारी कराए गए डायरेक्टरेट भी बेसूद रहे। हुकूमत पंजाब की जानिब से माली साल 2020-21 के बजट में टोबा टैक्सिंग को सेहत के शुबे में कोई बड़ी स्कीम ना मिल सकी। DHQ अस्पताल को अपग्रेड करके 250 बेड से 500 बिस्तर का करने का ख्वाब भी पूरा ना हुआ। अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर की तामीर के हवाले से भी कोई फंड्स ना रखे गए। हुकूमती जमात के मरकजी रहनुमाओं और अरकान असम्बली की जानिब से वजीर आला हाउस से जारी किए गए डायरेक्टरेट भी किसी काम न आए। शहरियों को सुहाने ख्वाब दिखाकर जिला भर के अरकान असम्बली खामोश हो गए, क्योंकि अवामी इज्तिमात और इंतखाबात के दौरान किए गए वादे इस साल वफा होना भी मुश्किल है। आइंदा साल तक शहरियों को दस्तयाब सहूलियात पर ही गुजारा करना होगा। ट्रॉमा सेंटर न होने से किसी भी इमरजेंसी में मरीज ज्यादा होने पर उन्हें दीगर शहरों को भेजा जाता है। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से बहबूद फंड्स की फराहमी के हवाले से जमा करवाई गई दरख्वास्तों का जायजा लेने के लिए DC टोबा आमिना मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुख्तलिफ नौयत के फंड्स के हवाले से 400 से ज्यादा दरख्वास्तों की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग की ज़ेर सदारत इजलास में मजमूई तौर पर 850 से ज्यादा दरख्वास्तें पेश की गईं। क्वायत मुकम्मल होने पर जांच पड़ताल के बाद 491 दरख्वास्तों की मंजूरी दी गई। इनमें से शादी ग्रांट की मद में 44 दरख्वास्तों की मंजूरी दी गई, जबकि तस्दीक के लिए की 49 और बेवा खवातीन की माहाना ग्रांट के लिए 20 दरख्वास्तों की मंजूरी दी गई। बच्चों के तालीमी अखराजात के लिए स्कॉलरशिप ग्रांट के लिए 378 केसेस मंजूर किए गए। DC टोबा ने जिला भर से बहबूद फंड के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करने की हिदायत की। DC ने कहा कि हकदार को हक जरूर दिया जाएगा। मुस्तहिक मुलाजमीन की दादरसी करना उनका फर्ज है। उन्होंने कहा कि बाकी मानदा दरख्वास्तों के कवायद मुकम्मल करके उनकी भी जल्द मंजूरी के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने यकतरफा और गैर हकीकी बजट को मुस्तरद कर दिया। उज़री मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बजट को IMF के हुक्म पर तैयार होने वाला बजट करार दे दिया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के नुमाइंदगान ने सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 4% की सतह पर लाने का फौरी मुतालबा कर दिया। कहते हैं बजट से बहुत सी तक़वात वाबस्ता थी जो पूरी न हुई। इस माशी बहरान में हमें जो है एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। ये गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी। जो डूबती हुई इंडस्ट्री है इसको उठाने के लिए वो कारआमद साबित होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल दैट एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स में जो हमारी इंडस्ट्री की ख्वाहिश थी वो ये थी कि 0% पे इसको लाया जाए, लेकिन 0% तो दूर की बात, इसको सिंगल डिजिट में भी नहीं लाया गया।
साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ जिया ने कहा कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में कमी के बायस एक्सपोर्टर्स हज़ार सर पकड़ कर बैठे हैं, बजट में रिलीफ के मुंतज़िर थे, जबकि हुकूमत वक्त ने बजट में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए कोई मराद का ऐलान नहीं किया। इस सारी सिचुएशन में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन इस बजट में ना बिजली की प्राइस जो है वो कम की गई, ना गैस की प्राइस कम की गई। काशिफ जिया ने कहा कि हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों में फौरी कमी का ऐलान करे ताकि डूबती इंडस्ट्री को सहारा दिया जा सके। कैमरामैन वकास अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। सूबाई बजट में टिड्डी दल के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। मुतासरा अराजी पर सफरे किया जाएगा, जबकि मशीनरी खरीद कर टिड्डी दल को तल्फ करने के लिए इकदाम होंगे। फैसलाबाद के काश्तकारों की जानिब से टिड्डी दल को तलफ करने के लिए रकम मुख्तस करने का खैर मकदम किया गया है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि पंजाब में 4 अरब रुपए से टिड्डी दल तलफ हो सकती है। हुकूमत ने बजट मुख्तस करके अच्छा इकदाम उठाया है। काश्तकारों की जानिब से खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि कहीं इस रकम को दूसरे कामों में ना लगाया जाए, क्योंकि अगर टिड्डी दल को इब्तिदा में ही ना तलफ किया गया तो ग़ज़ाई बहरान पैदा हो सकता है। 4 अरब रुपया जो है अगर तो वो प्रॉपर तौर पर टिड्डी दल को ख़त्म करने के लिए लगाया जाए तो 4 अरब बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में, हमारे अदारों में ये 4 अरब रुपया अगर वो ज़ाती गाड़ियों के ऊपर ख़र्च कर लेंगे, ज़ाती कामों पे ख़र्च करेंगे तो ये बहुत नाकाफ़ी रकम है। इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमलों की वजह से मुल्क में अरबों रुपए की ज़राई अजनास ज़ाया हो चुकी हैं। फैसलाबाद अभी तक हमलों में महफूज है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1000 रुपए हो गई। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। ये रिपोर्ट देखिए। जंग में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इकदाम न किए जा सके। 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 805 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन आटा नायाब हो गया। दुकानदार महंगे दामों 1000 रुपए से ज्यादा आटा फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीबों ने भी खाना, अमीरों ने भी खाना, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन शदीद बहरान है, इस पे हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करो और जिली इंतजामिया को चाहिए इसको कंट्रोल करे। चक्की का आटा 60 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि आटा महंगा होने से रोटी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत आटे की बढ़ती कीमत का नोटिस ले। आटा मिल नहीं रहा, आवाम रुल रही है, आटा का बहरान बहुत शदीद अख्तियार कर रहा है, कोई इंतजामिया तावन नहीं कर रही, आवाम बिल्कुल परेशान है। पहले ही बहुत बहरान है, पहले पेट्रोल का बहरान था, चीनी का बहरान, अब आटे का बहरान आ गया। ये हुकूमत ने आवाम को परेशान करके रख दिया। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि सरकारी गंदुम नहीं मिल रही, जिसका बायस आटे की कीमत में इजाफा किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 छन। और चिन्यूट इंतजामिया की जानिब से खत्म नबूवत चौक समेत लालियां, चनाब नगर और भवाना में कायम सस्ते सहूलत बाजारों में चीनी के स्टॉल्स कायम किए गए। ये रिपोर्ट देखें। ओपन मार्केट में चीनी की शॉर्टेज और महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ताहाल चीनी की कीमत के हवाले से अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। ताहम इंतजामिया ने खत्म नबूवत चौक समेत लालियां, चनाब नगर और भवाना के सस्ते सहूलत बाजारों में चीनी का स्टॉल कायम कर दिया है। स्टॉलों पर मदीना, सफीना और रमजान शुगर मिल इंतजामिया चीनी सप्लाई देंगी। शहरियों का कहना है कि चीनी के हसूल के लिए 10 किलोमीटर सफर करने पर मजबूर हैं। सफीना शुगर मिल की जानिब से यहाँ ये सेल पॉइंट लगाए हुए हैं। 5 सेल पॉइंट है हमारे लालिया में, आउटलेट फैक्ट्री गेट और उसके बाद चनाब नगर और उसके बाद चनियोट में। हम 1 किलो से लेकर 5, 10 तकरीबन जितने भी किसी घर की ज़रूरत होती है हमको 70 रुपए के हिसाब से फराहम कर रहे हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ओपन मार्केट में अदालती हुक्म पर चीनी फरोख्त कराने के लिए इकदाम करें और ओपन मार्केट में महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ बाबर मनी, सिटी 41 चिन्योट। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा के चिन्योट आमर DPO सैयद हसनैन हैदर के हमरा SP इन्वेस्टिगेशन और थाना मोहम्मद वाला का दौरा किया। RPO ने SP इन्वेस्टिगेशन दफातर का दौरा भी किया और थाने का रिकॉर्ड चेक किया। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रिफत मुख्तार राजा की जानिब से चिन्योट का दौरा किया गया। DPO सैयद हसनैन हैदर के हमरा SP इन्वेस्टिगेशन और थाना मोहम्मद वाला की इंस्पेक्शन की गई। सेशन कोर्ट की तमाम अदालतों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के लिए स्कैनर पहुंचा दिए गए। कमेटी रूम में सेशन जज राना मसूद अख्तर की सरबराही में जजेस की मीटिंग मुनक्किद हुई।
सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और तहसीलों में मौजूद अदालतों के तमाम रिकॉर्ड और जजेस के फैसले को ऑनलाइन करने के लिए सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर की जानिब से हदायत जारी की गई। सेशन कोर्ट के कमेटी रूम में सेशन जज की सरबराही में जजेस की मीटिंग हुई, जिसमें सेशन जज की जानिब से जजेस को रिकॉर्ड ऑनलाइन और ऑर्डर हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर में लिखने के बारे में तफसीली ब्रीफ किया गया। सेशन जज राना मसूद अख्तर का कहना था कि पुराना रिकॉर्ड अगर ज़ाया हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान फ्रीकैन को होता है। जुडिशल रिकॉर्ड तो ज़ाया होना ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी वजह से पार्टीज़ का बहुत नुकसान होता है, फ्रीकैन का बहुत नुकसान होता है उनको। सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद अख्तर का मजीद कहना था कि तमाम जजेस अब अपने फैसले हाथ से लिखने की बजाय कंप्यूटर में लिखा करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में अगर रिकॉर्ड ज़ाया हो भी जाए तो कंप्यूटर से दोबारा हासिल किया जा सके। हर फाइल उसको स्कैन करके कंप्यूटर में रखेंगे और सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो हमारी वो भी कंप्यूटराइज्ड हुआ। सेशन जज राना मसूद अख्तर की जानिब से जजेस के फैसले ऑनलाइन करने के इकदामात को वकला की जानिब से सराहा गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ राना ज़ाहिर नज़ीर, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 41।